So the next part is they have given, think about it, what will happen when the carrying capacity of any habitat is exceeded. So that we have already discussed कि जब habitat का carrying capacity मतलब resources का limits reach हो जाता है तो naturally population को resources कम पड़ने लगेंगे and the population will start decreasing in size क्योंकि competition बढ़ जाएगा. What would be the reasons behind enormous increase in human population? तो human population इतना क्यों बढ़ा है? So there are many reasons behind it. Okay, one by one I'll discuss out the reasons and explain you. The very first reason is poverty. Okay, now you will think ki if people are poor, how is the population is going to increase? See, poverty की वजह से if they are poor तो it is natural, that means they will have lack of education, resources तो उनको कम ही पड़ रहे हैं, डेथ रेट उनमें हाई रहता है, बट एट द सेम टाइम पुअर पीपल में बर्थ रेट भी हाई रहता है. सो सिंस दे आर पुअर दे कांट अफोर्ड फूड एंड हाइजीन एंड ऑल, तो डेथ रेट इज देयर, बट एट द सेम टाइम दे डोंट हैव एजुकेशन रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड ऑल, तो नेचुरली उनका बर्थ रेट भी उतना ही पैरेलली हाई रहता है. अनफॉर्चुनेटली माल नरिश्ड लोग ज़्यादा रहते हैं, but they keep on reproducing, and that's the reason कि it is related to increase in population. Then next to that is poor contraceptive use. मतलब even among the educated class of people also we find that many people are unaware कि what type of contraceptives are there and where they are available and when they are to be used and how to keep a gap between two kids and how to manage your what we say conceptions, मतलब pregnancies. So that's the reason कि why the population has exploded in a country like ours. And upon that it's like it was considered earlier like a taboo to talk about pregnancies and contraceptives, मतलब बच्चे नहीं होने देने के methods and all, so people were not talking about it openly to each other or to doctors, and because of this population was tremendously increasing and people were not bothered. They were like it's fine if बच्चे हो रहे तो, and they were taking of the kids, care of the kids, or if they were not able to take care of the kids, many of the kids were dying. इसलिए what we say child mortality rate या infant mortality rate, मतलब less than 1 year kids dying immediately post delivery and all these rates were high in India earlier. जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हुआ है, पीपल हैव बिकम मोर मॉडर्नाइज्ड एंड एजुकेटेड, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी उनको इम्पोर्टेंस समझा है और वो अभी यूज़ कर रहे हैं. बट अर्लियर ऑल दिस थिंग्स वर नॉट देयर. इसलिए इफ़ यू सी योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके है ना 8-8, 9-9 बच्चे हुआ करते थे. सो यू गॉट द रीज़न कि वो एरा में वो पॉपुलेशन अचानक से क्यों एक्सप्लोड हुआ है. देन another thing is child labor. If you see even now, even today in the current situation, what you can see is कि ये जो construction sites होते हैं वहाँ पे if you see the people who are working over there, they have n number of kids. So what is the reason behind this? They feel that अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फैमिली में ज़्यादा वर्किंग मेंबर्स होंगे, क्योंकि चाइल्ड लेबर वो लोग करवाते हैं, तो ज़्यादा वर्किंग मेंबर्स होंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगा. दिस इज व्हाट देयर मेंटालिटी. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी. एक तो चाइल्ड लेबर इज़ क्राइम, बच्चों से काम करवाना, एंड अपॉन दैट वो बच्चे बेचारे माल नरिश रह जाते हैं बिकॉज फूड प्रॉपरली नहीं मिलता. दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज़. सो बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी ना, ये कैसा कनेक्शन है कि बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी दैट दे विल हैव मोर किड्स एंड मोर लेबर एंड मोर मनी, तो इसके लिए पॉपुलेशन बढ़ने का एक ये रीज़न है. देन द अदर रीज़न आई कैन टेल यू इन आवर कंट्री इज़ reduced mortality rate, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीनेशंस आए, पोलियो, स्मॉल पॉक्स या दूसरे बीमारियों से जो लोग मर रहे थे वो डेथ रेट कम होने लगा, mortality रेट कम हुआ, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई. People have access to medical facilities now in many of the cities, so naturally the death rate has come down. Death rate has come down, but if you observe कि the age limit has decreased, but unfortunately क्योंकि लोग पहले बहुत एज तक जिंदा रहते थे, 80-90s तक, और फिर मरते थे बिकॉज ऑफ सेनेसेंस, दैट इज़ एजिंग. बट उस वक्त में तो लोगों के मरने के दूसरे रीजंस भी थे. लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से बीमारियों से भी मर रहे थे. अभी के एरा में वी हैव medical access and all those things, but the unfortunate thing is there is a lot of stress with us, and that's why we are
dying at an early age because of the stress. Okay, even if we have the medical facilities to save us from different diseases, but still we fall prey to it and to the stress and we are dying. तो mortality लेकिन rate कम हो चुका है, मतलब number of people dying has decreased, but the age parallelly age at which people are dying, that also has reduced. Okay, decrease हो गया है. Then fertility treatment. Now if you see, there are so many IVF centers booming around you. Okay, cities में and even rural areas में अभी gynecs are practicing delivery का practice उनका तो है ही, but more money they earn from this IVF treatments. Okay, now again the stress factor is coming into play. People are running behind modernization, money and rich lifestyle, and they are, it's not bad, but there is a limit to everything. When you're doing all these things, people are undergoing a lot of stress, competition and all those things, and in that process, when they naturally see, a human has a natural tendency, every animal has a natural tendency to have their own babies. फिर जब वो टाइम आता है to have their own babies, when they have undergone so much stress, there is hormonal imbalance or some XYZ reason, obesity, diabetes, blood pressure and all, and then they are unable to have their own kids, so they run to these IVF centers. And in IVF center now n number of techniques are there कि किसी भी तरीके से वो बेबी करवा सकते हैं. So again, fertility treatments are again responsible, क्योंकि maybe nature has selected some couples to stay infertile या sterile, but IVF centers are granting them this what we say, it's like a boon for the people who are not having babies, but it's not a boon for the country because the country is exploding with population like anything. So fertility treatment in females are leading to again population, more increase in the population. Then इमिग्रेशन, अभी इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आके तो नहीं रह रहे हैं, बट देन इन जनरल कहीं पे भी अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, जैसे यूएस में पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न हो सकता है इमिग्रेशन. पीपल आर गोइंग ओवर देयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो यूएस के अंदर इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न हो सकता है. एंड वाई पीपल गो ओवर देयर, बिकॉज दे वॉन्ट टू एस्केप. अभी इंडिया से क्यों वहाँ पे जाते हैं? वी वांट टू एस्केप दिस पॉवर्टी, दिस अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पे, इसलिए. देन सो दिस आर ऑल फ्यू ऑफ द रीजंस दैट आई टोल्ड यू, बट येस द लॉजिकल रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन ओवरऑल. ओके, मैंने तो तुमको इंडिया के स्पेसिफिकली रीजंस बताए. देन under a particular set of selection pressure is natural selection. Okay, natural selection में environment खुद ही चीज़ों को restrict कर देता है, जैसे food availability कम करवा देता है, या what we can see dwelling places लिमिटेशन में आने लगते हैं. तो ऑर्गेनिज्म नेचुरली इस सिलेक्शन प्रोसेस में इवॉल्व होता है. वी नो दैट देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवोल्यूशन. द जीन्स चेंज एंड द एवोल्यूशन जो होएगा उससे जो क्वालिटीज़ आएंगी, अगर वो क्वालिटीज़ अच्छी हैं तो वो अडेप्ट हो जाएंगे. दे विल इवॉल्व एंड अडेप्ट एंड गेट एडजस्टेड एंड सर्वाइव. द वन दैट इज इवॉल्विंग बट इन अ नेगेटिव एवोल्यूशन, तो इट वोंट अडेप्ट एंड इट विल पेरिश. सो दिस इज अ वे ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर. तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी. तो एवोल्यूशन में वो लोग रिप्रोडक्शन का भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना लेते हैं ताकि उनका स्पीशीज हमेशा कंटिन्यू रहे. सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफरिंग्स, जैसे फिशेस होती है, पेलेगिक फिशेस, मतलब फिशेस दैट लीव नॉट एकदम क्लोज टू द सी शोर या बॉटम ऑफ द सी, बट जो बीचों बीच पानी में तैरते रहते हैं, ऐसे फिशेस एंड ऑयस्टर्स एंड ऑल. ये सब फिशेस जो है या ऑर्गेनिजम्स जो है, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे देते हैं साइज में, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में. तो एट अ टाइम लैक्स ऑफ बच्चे देते हैं. ऐसा क्यों? सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू कंटिन्यू दैट स्पीशीज, क्योंकि उनके बच्चों को काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स एज फूड खा जाते हैं. तो इस प्रोसेस में अगर उनका नंबर कम रहा तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी बाय देम थ्रू रिप्रोडक्शन कि वो ज़्यादा नंबर में बनाएंगे ताकि उनके आधे बच्चे खा भी लिए किसी और जानवर ने तो भी उनका स्पीशीज़ कंटिन्यू रहेगा एंड उनका नंबर बढ़ता रहेगा. दूसरा स्ट्रैटेजी कौन सा है रिप्रोडक्शन में? तो दूसरे बड़े जानवर जो है वो कुछ और स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, जैसे दे प्रोड्यूस less number of organisms या offsprings, but
व्हाट वी कैन से सर्वाइवेबल। ओके, तो जैसे मैमल्स है या बर्ड्स है, वो लोग एट ए टाइम कम बच्चे देते हैं, लेकिन उनके और सभी के सभी बच्चों का सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा होता है। थोड़े बहुत मर जाएंगे लेकिन मैक्सिमम सर्वाइव कर जाएंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ kids produced at a time are less, but they are all going to survive, so naturally the population will continue, their population will continue. An example I can give you of humans. At a time हम normally एक ही बच्चा पैदा करते हैं, ओके, प्रेगनेंसी में। अभी ट्विंस होना, ट्रिपलेट्स होना इज़ अ रेयर थिंग। तो वो एक ही बच्चा क्यों बनता है बड़े जानवरों में, ताकि उस बच्चे को पैदा कर सके, उसको पूरा अटेंशन दे सके, उसका पूरा केयर ले सके, और वो बराबर से बड़ा हो जाएगा तो उनका स्पीशीज कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो सर्वाइव कर गया तो वो रिप्रोड्यूस करके स्पीशीज को आगे बढ़ाएगा। ओके, तो जो ऑर्गेनिजम्स ये कर सकते हैं उनके बच्चे एट ए टाइम कम पैदा होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ये नहीं कर पाते उनके बच्चे एट ए टाइम बहुत ज़्यादा बनते हैं, ताकि कुछ मर गए तो भी बाकी के उनकी स्पीशीज को कंटिन्यू कर सके। सो दिस इज व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी adapted by the organisms so that their population can grow. Then they have given, think about it में, what can be the reasons behind the different reproductive strategies adapted by the plants. Okay, monocot plants जैसे cereals है, pulses are not monocot, okay, pulses are dicot. तारी दाल जो होती है तुम्हारी, they are all dicots, and dicot plants like mango is a dicot only. तो ये different plants ने क्या strategies adopt, what can be the reason behind it. तो see the monocot and dicot plants have adopted different strategies. क्यों? क्योंकि they have to survive the environmental stress and continue. Okay, they have to carry forward their genes, they have to show rapid propagation and establish themselves so that they can continue on this earth. So that's the reason that they have adapted different strategies. What are the different strategies if I talk about them? तो you can see पॉलिनेशन स्ट्रैटेजीज वो लोग अप्लाई करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं ताकि उनके जीन्स में वेरिएशंस आ सके और वो बेटर अडेप्ट हो सके विद बेटर क्वालिटीज डेवलपिंग इन देम। सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाते हैं खुद में, ताकि जो अच्छी जीन्स है वो वैसे ही कंटिन्यू हो सके। या फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, उनका फ्लावर में वो चेंजेस लाते हैं ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो सके। एनिमल पॉलिनेशन करवाते हैं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन करवाते हैं, सबके लिए अलग अलग वो डेवलपमेंट्स दिखाते हैं ताकि किसी ना किसी बहाने उनका पॉलिनेशन हो, सीड बने और सीड से फिर उनका प्रोपगेशन चालू रहे। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ।